हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज द लेक्चर 2 एंड वी आर कंटिन्यूइंग द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैम टू। प्रीवियसली इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये देखा था कि लाइट को लेकर जो कंसेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज बहुत सारी बनाई गई हैं, वो उसके नेचर को लेकर बनाई गई थी, राइट। कोई बोलता है पार्टिकल नेचर है, कोई बोलता है वेव नेचर है, फिर अलग अलग फिनोमिनास को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई एंड फाइनली डी ब्रॉगली ने सभी थ्योरीज को यूनिफाई करके थ्योरी बना दी, दैट इज द डी ब्रॉगली थ्योरी। एंड उसमें उसने बताया कि लाइट का जो नेचर होता है दैट इज ऑफ द डुअल नेचर, राइट। मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है एंड वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। ये बात पता होने के बाद ये फाइनल हुआ दैट इज द नेचर ऑफ द लाइट वेव। इट इज ट्रांसवर्स एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो। इट डज हैव द पार्टिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो बेसिकली सारे के सारे फिनोमिना हम इन दोनों डुअल नेचर से बता सकते हैं। जितने भी फिनोमिना हम लोगों ने लाइट के लिए ऑब्जर्व किए हैं ये हम लोग बता सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी you can say interface of the two media, right। ये हम लोग देखेंगे and the characteristics along with some terms we are going to understand them in this lecture। Alright, this is an important chapter because light is totally important chapter. It is a high weightage in other examinations too. So basically it is a good chapter. You should definitely do it very much often and with deepness, right। So basically we do prepare you for the school examination as well as the Olympiad. So basically we do preparing for the NTSC and SCJS. So basically you need to write this chapter very much deeply, alright। If you want any TPP or study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB010 in the search box of the Telegram app. If you write this, you will be getting the list, right? The hour list of the 10th class. So join that list, alright. So basically you will be getting the DPPs and study material if you join the channel. So make sure that you join it, right? Now see, this is the team which is going to help you a lot because we are covering the science and mathematics Olympiads basically. We are like preparing you for the physics, chemistry, bio along with maths and math. These are the 5 subjects we are preparing for you, right? And these are the things in which we are going to give you the quality lectures so that you are able to prepare for the school examination along with the competitive level. And that is so good because furthermore if you wanna go for that competitive level you will be getting a very much basics, right, and that it will be strong for you. This is why we are doing this. Now see, along with that कि हम आपको quality lectures provide करें, along with that we have already provided you some packages which is you can get from our website, right, and our website is www.talkingtextbooks.in. If you go on that website you will be getting 2 type of packages. Number 1 is the you can say the full package. Number 2 is the test series. So the full package contains all the necessary things you need to complete any course and definitely you need to crack any examination. That is why these are the minimum things you need. You will be getting a comprehensive study material that should be competitive focused, right? That means it should be focused on that material. But our material included the school examinations question papers also. So basically you will be getting like a thinking or you can say a strategy how you are going to deal with the questions appearing your school examinations and the questions appearing your NTSC levels, right? So basically that will be how you can compete with all the students by studying from these materials. Then you will be getting the recorded and live classes that is free for everyone and you are getting it. So it is so good and that is a complement or you can say a supplementary thing for the study material, right? If you get that you can definitely study from that either from your lectures, and lectures definitely it will be explainable. So it can explain all the things included in that study material, right? Homework submission feature is the necessary thing because you will be doing the homework and we will be checking that. So homework submission is a thing which you will be like needed for that, right? You should do the homework and submit it to us. नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हैं बाई वीकली क्विजेज. बाई वीकली क्विजेज में क्या होगा, यू विल बी गेटिंग टेस्टेड ट्वाइस अ वीक. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेस्ट ट्वाइस अ वीक. इसका मतलब आप लेक्चर स्टडी करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ क्विज, यू विल बी अटेम्प्टिंग दैट एंड नोइंग दैट वेयर यू आर लैकिंग. ऑलराइट, हमें मेन एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मेन एम होता है
वो यही होता है कि हम किसी तरह अपनी कमज़ोरियों को समझें और उन पर फोकस करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं. दैट इज़ द मेन थिंग. ठीक है, पढ़ना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट उस पढ़ने के बाद उस चीज़ को रिमेंबर करके रखना, उस चीज़ को अप्लाई करना इज़ द डिफ़िकल्ट वन. बिकॉज हम सब क्या करते हैं, क्वेश्चन से डर जाते हैं. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए बाय वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स बनाए हैं. देखो, बाय वीकली क्विजेस में यू विल बी वॉचिंग द लेक्चर्स एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्विज. सो बेसिकली दैट इज अ शॉर्ट क्विज, तो इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा आप लोग का, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट इन अ वेरी स्मॉल टाइम. राइट, तो आप अगर बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तब आप बहुत अच्छे से क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में एक और नई चीज़ आती है, वो ये कि आप जिस भी एग्जामिनेशन को फोकस करके क्लियर करना चाहते हैं, वो एग्जामिनेशन में कैसा पैटर्न आता है, ये चीज़ आपको बताएंगे पीरियोडिक टेस्ट पेपर. सिमिलर ऑन दैट पैटर्न, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग, दैट इज़ ऑल, ये सब पूरा आपको बिल्कुल फैमिलियर हो जाएगा बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल एग्जामिनेशन. So that would be beneficial. So that's why I am going to say that this full package is totally focused for your examinations. Make sure that you go through it. All right. And the second thing you will be getting is the test series, right? So if you are interested in just doing the test series, make sure you do it. Make sure you get that periodic test papers, bi-weekly quizzes along with the recorded and live classes, which is free for everyone. So basically you can get both of these according to your need. You can do that. Right. If you are serious about buying them, then make sure that you remember my code CY Live. If you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you have any query regarding these things, how these things will be benefiting you and how these things will be helping you in your journey, then you can contact us on 919549041111. So you can call us on this number and you will be like guided through the process. All right, and you will be definitely getting all your queries resolved. So basically you can call us if you have any query. All right, now let's move on to the promise section. So promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is a must thing to do. All right, and this is the third chapter. Make sure you do revise the first two chapters. Do not forget them, because there is no any reason to forget them, right? They are going to come in your examination. That's why we have to study them too, revise them too, right? Now let's get started with our chapter. Today we are going to understand the behavior and the characteristics of light. How a light behave, all right? किस तरीके से behave करती है when it falls on any interface. We will be talking about that. So basically we are going to see three things today: medium of light, characteristics of light, some terms related to that along with the behavior. All right, that is what we are going to study today. So यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया था, लास्ट टाइम में हमने तीन मीडियम्स देखे थे, राइट? मीडियम मतलब जिसके अंदर से लाइट जा सकती है. ऑल राइट, तो देखो यहाँ पर जब हमने ऐसा बोला कि वहाँ पर आपको तीन मीडियम्स बताए गए हैं. फर्स्ट वन इस जिसमें से फुली लाइट जा सके, ट्रांसपेरेंट. फिर हमने बताया जिसमें से पार्शली लाइट जा सके, ट्रांसलूशन. एंड देन ओपेक, जिसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती, लाइट. तो ये जो तीन मीडियम्स हैं, उसके बाद आता है ऑप्टिकल मीडिया का. ये यू कैन से अदर टू टाइप्स विच कैन बी टेकन एज द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. ऑल राइट, सो लेट मी टेल यू दीज. होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट आर दीज, लेट मी टेल यू. देखो, होमोजेनस मीन्स एक जैसा, ठीक है. तो जस्ट लाइक कि भाई तुम वाटर लेते हो, ठीक है, पानी लो, तुम कांच के ग्लास के अंदर पानी भरो एंड उसके बाद तुम क्या करो, एक चम्मच सॉल्ट लेके उसमें डिज़ोल्व कर दो. सो जब आप क्या करेंगे, उस नमक को डिज़ोल्व कर देंगे, सॉल्ट को पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर देंगे, क्या होगा, पूरा का पूरा नमक पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल है वो चीज़, राइट. आपको बाद में आपको ये पता नहीं चलेगा कि नमक कहाँ है आफ्टर डिजॉल्विंग, बिकॉज इट इज़ टोटली होमोजेनस. एक जैसा पूरा सोल्यूशन वो बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट होमोजेनस मीडियम. ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो, वैक्यूम, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर एल्कोहल, ग्लास, प्लास्टिक्स, डायमंड, ये जो मीडियम्स हैं, दीज आर दी होमोजेनस मीडियम. एक जैसे मीडियम है, राइट. उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है दैट इज सेम थ्रू आउट दैट ऑब्जेक्ट, राइट. तो ऐसे मीडियम्स को हम क्या बोलते हैं, हम होमोजेनस मीडियम बोलते हैं.
ऑल राइट, लेट मी राइट दी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस। सो एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम मतलब जिसमें से लाइट जा सकती है, ऑलराइट, ऐसा ऑप्टिकल मीडिया जो कि पूरे तरीके से सेम कॉम्पोजिशन रखता हो पूरे ऑब्जेक्ट में, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजेनस मीडिया, ऑलराइट। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं है, ठीक है, वो सेम नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं एयर, मडी वाटर, फॉग, मिस्ट एक्सेट्रा, दीज आर एक्चुअली, हमने एक्चुअली एयर को भी यहाँ पे जो है हेट्रोजेनस बोला है। व्हाई इज दैट? बिकॉज एयर का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज डिफरेंट। कैसे भाई? जैसे हम अपवर्ड जाते हैं तो वहाँ पर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है, राइट, एंड व्हेन वी दे गेट एनर्जी, दैट्स व्हाई उनका जो मीडियम का ऑप्टिकल यू कैन से इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो चेंज हो जाता है, ड्यू टू विच वी कंसीडर दैट एज अ हेट्रोजेनस, ठीक है। ऐसा मीडियम, ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जिसके अंदर से लाइट जा सकती है, राइट, बट दैट मीडियम इज नॉट सेम थ्रू आउट, दैट मीन्स इट इज हेट्रोजेनस, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट भी अच्छा एग्जाम्पल है, सो कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता, सो इट इज नॉट सेम थ्रू आउट, इनका जो कॉम्पोजिशन है दैट इज नॉट सेम थ्रू आउट, राइट। सो डेफिनेटली यू कैन consider these as the heterogeneous medium. Alright, so make sure you note this down. These are the two media, homogeneous and the heterogeneous mediums. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें दो तरीके के मीडियम्स पता चले, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस विच हैज द सेम composition throughout, that can be considered as the homogeneous medium, and the one which does not have the same composition throughout is taken as the heterogeneous medium. Alright, and these two both are the optical medium through which light can enter. Alright, light can transmit through them. Alright, now let's talk about the behavior. How a light behaves when it strike on the interface of two media. Interface of two media का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसा प्लेस या फिर ऐसा प्लेन जहाँ पर दो मीडियाज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिवर जो होती है उसका आउटर सरफेस, ठीक है, तो रिवर में क्या होता है? पानी, ठीक है, तो वी कैन से वाटर। देखो अब यहाँ से वाटर का आउटर सरफेस, ठीक है, और उस सरफेस की जस्ट ऊपर एयर है, उस सरफेस की जस्ट नीचे वाटर है, तो दैट कैन बी टेकन एज द इंटरफेस, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस, मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पर दो मीडियाज मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? इंटरफेस होगा। सो एट दैट इंटरफेस, उस इंटरफेस पे जब स्ट्राइक करती है लाइट, तो हाउ इट बिहेव्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट है ये फॉल कर रही है, दिस इज द इंटरफेस, ऑलराइट, दिस इज इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ऑलराइट, ये एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर मीडियम 1 एंड जिसके नीचे मीडियम 2, ऑलराइट, तो एक ऐसा प्लेन विच इज सेपरेटिंग आउट द टू मीडिया, ऑलराइट, दैट इज नोन एज द इंटरफेस, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो फॉल करती है, इस पूरे प्लेन पर इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी, फॉल करने के बाद यहाँ पे क्या क्या फिनोमिना होते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? रिवर एंड एयर का, राइट। एयर जो है
वो एक मीडियम ट्रीट होगा और वाटर एज अ सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो देखो, जब कभी भी इंसिडेंट लाइट रिवर की सरफेस पे, नॉट रिवर, वी कैन से वाटर बॉडीज की सरफेस पर जब वो लाइट रे स्ट्राइक होती है तो तीन फिनोमेनाज होते हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है, एट दैट इंटरफेस तीन फिनोमेना होते हैं एट राइट दिस पॉइंट। एक पहला फिनोमेना, जो लाइट गिरी है, ठीक है, जो लाइट फॉल हुई है, जो लाइट इंसिडेंट हुई है, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट इंटरफेस सम पार्ट ऑफ द लाइट गोज बैक इनटू द एयर, दैट इज कंसीडर्ड एज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो द फर्स्ट फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन, लेट मी राइट हियर, that is what reflection, ऑलराइट। तो पहला फिनोमेना क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। कैसे, लाइट आती है, ऑलराइट, और सम पार्ट ऑफ द लाइट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज इनटू द एयर, ऑलराइट। सेकंड थिंग, सेकंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट फॉल हो रही है एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट गोज इनटू द वाटर विद अ लिटिल बिट ऑफ स्लाइट चेंज इन इट्स पाथ, राइट। तो वो क्या करती है, वो वाटर के अंदर चली जाती है। सो दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, एंड दैट इज द सेकेंड फिनोमेना विच इज हैपनिंग हियर, ऑलराइट। अब आता है थर्ड वन, डू यू नो द थर्ड वन? Third one is actually the absorption of the light. Right here at this point, the point at which the light strike the surface is actually considered at that point जहाँ पर लाइट का, कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ऑलराइट। सो द थर्ड फिनोमेना इज एब्जॉर्प्शन। सो देखो, यहाँ पर तीन फिनोमेना एक्चुअली हो रहे हैं, ठीक है, और ये आपको रियल लाइफ में कैसे लगेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कभी भी ऐसे जैसे ब्रिज पे से जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे रिवर है, सो क्या होगा, जब आप पानी में देखेंगे दिन के टाइम में तो आपको कुछ चमकता सा दिखाई देगा, लाइक कुछ शाइनिंग समथिंग विल बी देयर इनसाइड द वाटर। वो जो शाइनी है एक्चुअली में आप क्या देख रहे हैं, वो पॉइंट देख रहे हैं जहां से लाइट डायरेक्टली आपके आंखों में एंटर हो रही है। सो यू आर सीइंग द रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन यू सी द ब्राइटनिंग इन द शाइनिंग समथिंग इनसाइड द वाटर। सेकेंड थिंग, पानी के अंदर you can see the fishes, right? You can see the fishes. That means light is present inside the water. That means light goes through the water and we can say it illuminates there, right? तो लाइट का काम ही है, ये क्या करती है, वो खुद नहीं दिखती है बट इल्यूमिनेट कर देती है बाकी चीज़ों को। सो अगर आप पानी के अंदर की कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो चुका है, पानी के अंदर चला गया है, इसने मीडियम चेंज कर लिया, राइट, एयर टू वाटर वो चला गया है। सो दैट्स हाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ रिफ्रैक्शन। अलॉन्ग विद दैट आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि शाम होते होते पानी का सरफेस गर्म हो जाती है, पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द मॉर्निंग। कैसे हुआ, बिकॉज देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, राइट। तो यहाँ पे मेन तीन फिनोमेना हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट हियर एट दिस पॉइंट, राइट। तो अब लोग क्या करना है, आपको इसे नोट करना है, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर दीज फिनोमेनाज हियर। ऑलराइट, अब हम वन बाय वन इन तीनों फिनोमेनास को देखते हैं, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन जो कि हम लोग लिखने वाले हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्चुअली द रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहां लिखने वाले हैं, व्हेन लाइट रे goes back into the same media after striking the surface
this phenomena is reflection of light. ठीक है, सेकेंड जब हमने फिनोमेना देखा दैट इज रिफ्रैक्शन. तो देखो इंसिडेंट लाइट रे जब आती है वो इस सरफेस पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है एंड इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाए, दैट मीन्स दैट इज द रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि वो क्या करे, आती है स्ट्राइक करती है एंड इट चेंजेस द मीडियम, इट गोज इनटू द सेकंड मीडियम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन. राइट, तो हम सेकेंड वाला जो हमारा फिनोमेना है दैट इज रिफ्रैक्शन. लेट्स सी दैट द phenomenon in which light changes its path and goes into the second media is called refraction. Alright, now the third thing, at the moment जिस पॉइंट पर यहाँ पर लाइट रे ने स्ट्राइक किया है सरफेस को, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे सम ऑफ द लाइट एनर्जी और द हीट एनर्जी गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, दैट इज फिनोमेना नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. तो बेसिकली यहाँ पे जितना लाइट रे गिरी है, मतलब फॉल किया हुआ है, तो वहाँ पर उसके तीन पार्ट्स हो गए. एक पार्ट तो रिफ्लेक्शन में चला गया, एक पार्ट रिफ्रैक्शन में चला गया, एक पार्ट एब्जॉर्प्शन में चला गया. राइट, तो मतलब उसके तीन डिविजन्स हो गए. वी कैन नॉट से इट्स इक्वल और नॉट, बट इट हैव सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द पार्ट वी कैन से. ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द लाइट एनर्जी इज absorbed by the water or absorbed by the second medium absorbed by the interface is this is known as absorption of light. सो बेसिकली यहाँ पे तीन ऐसे फिनोमिना यहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पर लाइट रे इज फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस, सम ऑफ द लाइट रेज इज गोज बैक इन टू द सेम मीडियम, दैट इज रिफ्लेक्शन. सेकेंड थिंग, some of the light rays, or you can say light energy, goes into the second medium by changing its path, then that is known as the refraction. And some of the light energy is absorbed by the interface, that is the absorption of the light. So there are three phenomena, so that's how light behaves. Light goes on and it is split its energy, or you can say some of the take parts into that phenomena. राइट, सो इस तरीके से वो बिहेव करती है वेन एवर इट फॉल्स ऑन एनी इंटरफेस. हम लोग यहाँ पे सिर्फ एयर और वाटर की बात करें, बट ऐसा नहीं होता, अलग अलग मीडियम्स में भी होता है. लेट्स से लाइट अगर जा रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो वो बिल्कुल वही सेम बिहेव करेगी जैसा वो अभी कर रही है. राइट, तो बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ द मीडिया. ऑलराइट, सो अभी से आप फटाफट लिखें.
ऑलराइट, तो देखिए हम लोगों ने अभी जो है बिहेवियर देख लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. सो नंबर वन जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का वो क्या है, दैट इट हैज़ अ डुअल नेचर. राइट, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट के पास दो ऐसा उसका नेचर है. इट कैन बी ऑफ पार्टिकल नेचर, इट कैन बी ऑफ वेव नेचर. तो सम फिनोमेनाज जब होते हैं तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव, एंड व्हेन सम फिनोमेना जब होते हैं पार्टिकल नेचर. बट डू यू नो दैट ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग फिनोमेना के टाइम पे लाइट अपना अलग अलग नेचर चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता है. नेचर जो लाइट का है वो एवरी सिंगल टाइम इट रिमेन्स पार्टिकल एंड वेव. सो एवरी सिंगल मोमेंट इट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल एंड अ वेव साइमल्टेनियसली एक्चुअली. राइट, तो बेसिकली आप ऐसे बोल नहीं सकते कि अभी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और अभी लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते. उसका डुअल नेचर का मतलब ही यही है कि इट इज ऑलवेज वेव, इट इज ऑलवेज पार्टिकल. राइट, दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू. सेकेंड आप देख सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ, दैट इट इज अ वेव विच डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट. इट कैन गो थ्रू द वैक्यूम. राइट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, क्या इसका मेन एम्फेसिस है वो ये है, actually it does not move, or you can say it does not propagate with the help of the medium. It always propagate by its, you can say, the changing electric and magnetic field. तो इसीलिए इसका नाम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे आर like changing and moving together by perpendicular to each other. Right, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are like this perpendicular to each other, but they are changing. Right, that means increasing or decreasing. They are changing and they are moving simultaneously. When they move, electromagnetic wave, when they move, that wave goes away, propagates like this in this manner. All right, थर्ड उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लाइट डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. लाइक कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. मटीरियल, यू कैन से मटीरियल, इसका क्या मतलब हुआ, मटीरियल मीडियम का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. ऑलराइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल मीडियम देन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थ्री मीडियम्स. राइट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइट को नेसेसरी है, यू आर प्रोवाइडिंग द मीडियम तभी लाइट प्रोपगेट कर रही है, जस्ट लाइक साउंड. नो, इट इज नॉट. Sound is actually a wave which needs a medium to propagate. Right, sound को अगर आप चाहते हैं कि वो propagate करे, sound अगर propagate करे, अगर आप ये चाहते हैं that you have to provide a medium, either air, either not air but specifically a gas, liquid or solid. You need to provide that. But light के लिए ऐसा possible नहीं है. Right, light क्या करती है, बिना medium के propagate कर सकती है, because the reason is that it has electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and they move varying with the time. Right, when they move perpendicular to each other, that's how, when they move, right, that at that moment light is also propagating from one place to the another. So basically यहाँ पर main emphasis यही है that light is an electromagnetic wave. Right, and जो light है वो actually में क्या कर रही है, it is propagating with the help of the mediums, or you can say with the help, not the help of the medium but with the, you can say, help of the electric and magnetic fields which are varying with each other with time also. All right, फोर्थ इसका है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इट इज स्पीड इज मार्जिनली लेस इन एयर, इट स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर. तो देखो वो वैक्यूम में जब ट्रैवल करती है, जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो उस वक्त देयर इज नो एनी डिस्टर्बेंस और यू कैन से डिस्ट्रैक्शन. राइट, क्योंकि वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं होता. दैट मीन्स लाइट फुल स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती है. लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा सिर्फ इसी वजह से होती है. राइट, तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड जो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट. ऑलराइट, उसके बाद जब वो एयर में आती है, तो एयर में आने के बाद जब वो एयर में आती है, अर्थ में एंटर करती है, सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर में जाती है. राइट, तो इट डील्स विद द एयर फर्स्ट. तो जब वो एयर में से जा रही होती है, उसको कंपैरेटिवली लिटिल बिट ऑफ उसे ज़्यादा पार्टिकल्स रास्ते में मिलते हैं. डेफिनेट सी बात है ना, एयर के पार्टिकल्स तो मिलेंगे ही. एट दैट मोमेंट इसका स्पीड मार्जिनली लेस हो जाता है जब ये एयर में से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट इज गेटिंग इन इट्स पाथ
is getting more and more when it goes from the air, then liquid and then solid. In solid we all know that कि सब जो atoms होते हैं, molecules होते हैं, वो packed together होते हैं, right? तो अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि जो एक्चुअली में लाइट होती है जब वो ट्रैवल करती है, अगर कोई पार्टिकल उसको बीच में नहीं मिलता है, उसके पाथ में कोई पार्टिकल नहीं होता है, इट कैन ट्रैवल विद द फुल स्पीड. बट अगर उसको पार्टिकल्स मिल जाते हैं जस्ट लाइक एयर, कुछ पार्टिकल्स उसे मिल जाएंगे तो उसका स्पीड हल्का सा कम हो जाएगा. एंड व्हेन वो लिक्विड में जाएगी तो यू ऑल नो कि लिक्विड में तो पार्टिकल्स और भी पास पास आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू एयर. तो अब पार्टिकल्स और भी ज़्यादा मिलेंगे इफ लाइट गोज थ्रू दी वाटर, ठीक है, और यू कैन से लिक्विड. फिर अगर वो सॉलिड में से भी जाने की कोशिश करे तब उसे और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे उसके पाथ में. इन दैट केस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफर करती है इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है. वैक्यूम में सबसे तेज लाइट ट्रैवल करती है एंड देन उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है. एयर में बहुत ही कम होता है चेंज. दैट्स वाई, क्योंकि बहुत ही कम चेंज होता है एयर में, तो हम ऑलमोस्ट इनको सेम मान सकते हैं. हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम होती है, मतलब वो लेस भी होती है बट बहुत ही ज़्यादा कम लेस होती है. दैट इट इज़ लिटिल बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है. उसके बाद अगर हम लिक्विड एंड सॉलिड की बात करते हैं तो लाइट जब लिक्विड में आती है, ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादा पार्टिकल्स उसे मिलते हैं इज कंपैरिजन टू एयर, राइट. उसके केस में क्या होगा, लाइट के पाथ में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे तो अब उसकी स्पीड और भी कम हो जाएगी. वैक्यूम में सबसे तेज, देन एयर एंड देन लिक्विड, मतलब लिक्विड में और भी उसका स्पीड कम हो गया. फिर सॉलिड में जाते जाते उसका स्पीड और कम हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज वेरी मच मोर, राइट. ड्यू टू दैट लाइट का स्पीड चेंज होता है. इट इज वेरिंग इन द डिफरेंट मीडिया बट इट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम, राइट. ये हम लोग जो है बोल सकते हैं लाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक हम इसे बोल सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेसेस सच एज मिरर्स. लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. रिफ्लेक्ट करने का मतलब लाइट का पाथ चेंज कर देना, वापस वो जहां से आ रही थी उसे उसी जगह भेज देना. वी कैन डू दैट with the help of a polished surface. It has to be polished, right? Polished surface अगर होती है, polished surface का मतलब कि उसके जो रफनेस है that is बहुत ही कम, ठीक है. तो अगर किसी बॉडी का रफनेस अगर आप फिनिश कर देते हो, उसे बहुत शाइनी बना देते हो, उसे बहुत ही प्लेन बना देते हो, then you can say it is polished, alright, and then you can say कि light can now reflect from that surface, right? तो क्या किया जाता है, हम लोग ये बात जानते हैं कि सिल्वर जो है प्लेट कर दिया जाता है मिरर्स पे. आप पीछे की तरफ देखेंगे, उसका बैक साइड देखेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पे सिल्वर्ड मिरर है, राइट. वहाँ पे हम उसको पेंट कर देते हैं. सो वहाँ पर आपको जब ये पता चलेगा दैट लाइट फॉल्स ऑन दैट मिरर एंड इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट मीन्स हमने वहाँ पे क्या किया है, पाथ को चेंज कर दिया. तो लाइट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है. जब कभी भी लाइट के रास्ते में कोई भी सिल्वर सरफेस आती है, सिल्वर सरफेस सिर्फ कलर नहीं, मतलब इट कैन बी टेन शाइनी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है. तो लाइट की अगर पाथ में कहीं पर भी पॉलिश्ड सरफेस अगर आती है तो क्या होगा, लाइट जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट एंड इट गोज बैक इनटू द सेम मीडिया. ऑलराइट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Light undergoes refraction when it goes from one medium to another. अगर लाइट के रास्ते में एक मीडियम में मूव कर रही है, लेट्स से वो एयर में मूव कर रही है, फिर अचानक से उसे कोई और मीडियम मिल जाता है, लेट्स से वाटर मिल जाता है या फिर यू कैन से कोई सॉलिड मिल जाता है, तो ये क्या करेगा, एट दैट इंटरफेस वो क्या करेगा, हल्का सा अपना पाथ चेंज कर लेगा. दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इट ऑलवेज चेंजेस दैट. ऑलराइट, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पाथ. ऑलराइट, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ, एक्चुअली इट डज दैट, क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही यही है, एट दैट मोमेंट इट चेंजेस पाथ बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अचानक से ज़्यादा हो जाते हैं एंड टू कंपनसेट ऑल्सो, टू कंपनसेट द स्पीड ऑल्सो. तो उसके चक्कर में क्या होता है, लाइट अपना हल्का सा पाथ चेंज कर देती है टू चूज द मिनिमम पाथ, मीन यू कैन से मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ. Right, so to do that it undergoes the refraction. Refraction means changing its path when it goes from one medium to another. That is the characteristics of light while it is dealing with the two media. Alright, so that was the characteristic. These are the 6 characteristics of the light. Make sure you note them in your own manner and in your own words.
ऑलराइट, तो देखो ये हमने लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द लाइट. आपको वो टर्म्स पता होना चाहिए बिकॉज जब जब ही भी हम लाइट के बारे में बातें करेंगे, उसके फिनोमिनास को देखने समझने की कोशिश करेंगे, तब हम इन टर्म्स का ज़रूर यूज़ करेंगे, राइट. और दैट्स वाई आई विल बी टेलिंग यू ऑल दीज. सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज रे ऑफ लाइट. व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? एक्चुअली में रे ऑफ लाइट इज जस्ट एन एरो विच इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ थ्रू विच द लाइट इज गोइंग. ऑलराइट, तो देखो द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. जब कभी भी हमें ये बताना होता है कि लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है या फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, ये मेंशन आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लेट्स से लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड वी मेक एन एरो टू मेंशन दैट. वी मेक एन एरो टू मेंशन दैट कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, राइट. तो ये जो रे ऑफ लाइट हमने बताई है, दैट रे इज जस्ट इंडिकेटिंग द पाथ अलोंग विच द लाइट एनर्जी इज ट्रैवलिंग, राइट, टू ट्रैवल दैट. तो अब आप कहीं भी इस रे को देखोगे तो आपको पता चलेगा वेयर द लाइट इज गोइंग, राइट, और फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग. ये आपको पता चलेगा फ्रॉम दिस, यू कैन से दिस डायग्राम. ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. The arrowhead on it gives the direction of the light. As you can see here, this is a straight line. ठीक है, इसका जो ये arrow है, this is showing you the direction of the light where it is going. Alright, and उसका opposite आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ से वो आ रही है. So it can tell you the actually the path through which the light is going. Right. Second thing you can see is beam of light. अगर हम ये जो रे है इसी का कलेक्शन कर देते हैं, ठीक है, तो दैट कैन बी टेकन एज अ बीम ऑफ लाइट. तो ये जो कलेक्शन है रेज ऑफ लाइट, जैसे एक लाइट रे, हम ये बात जानते हैं लाइट रेज एक नहीं होती है. ठीक है, जब कभी भी वो आती है तो बहुत सारी होती है. तो उनका अगर हम कलेक्शन मान ले, बहुत सारी रेज अगर हम शो करें, उसका जो कलेक्शन है दैट कैन बी टेकन एज द बीम ऑफ लाइट. और अगर ये जो रेज हैं ये 1 और 2 हम लोग ले लेते हैं, 2, 3, 4 अगर हम लोग ले लें, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ यू कैन से रेज अगर ले लेते हैं, दैट कलेक्शन इज टेकन एज द पेंसिल ऑफ लाइट. ऑलराइट, तो देखो a collection of rays of light is called beam of light. However, if the number of rays is too small, then such a collection of rays is called pencil of light. जब कभी भी रेज का कलेक्शन बहुत ही कम हो जाए, मीन वी आर यूजिंग जस्ट 2, 3 रेज और 4, 5 रेज टू शो द डायरेक्शन, ऑलराइट, उस वक्त हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, पेंसिल ऑफ लाइट. अदरवाइज वी ऑलवेज से द कलेक्शन ऑफ रेज इज बीम ऑफ लाइट. ठीक है, ये जो बीम ऑफ लाइट है ये 3 तरीके की हो सकती है. ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. पहली आती है पैरेलल बीम. पैरेलल बीम से आप समझ गए होंगे दैट ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरेलल बीम, वी ऑलवेज से द कलेक्शन ऑफ रेज which are parallel to each other. That means they are never going to meet, right? They are never going to meet and they are totally parallel to each other like this. Such a collection is representing the beam of light. Alright, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कभी क्या होता है, वेंटिलेटर से अगर कोई रोशनी आपके रूम में आ रही है, ठीक है, तो वो जिस तरीके से आ रही है दैट कैन बी टेकन एज द बीम ऑफ लाइट. टॉर्च से जब कभी भी स्ट्रेट बीम निकलती है दैट कैन बी टेकन एज द बीम ऑफ लाइट, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ठीक है, फिर आता है सेकेंड थिंग, कौन आता है, कन्वर्जेंट बीम. कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है, जब कभी भी सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर मिल रही होती है, ठीक है, एक पॉइंट पर मीट कर रही होती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट बीम बोल देते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, बट दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. एक ही पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रेज अगर मीट करती हैं, सो दीज rays of light are these collection of rays is known as the convergent beam. Alright, इसे हम क्या बोलेंगे, convergent beam बोलेंगे. And basically this happens after reflection. जब कभी भी हम spherical mirrors के बारे में स्टडी करेंगे ना, हम lenses के बारे में स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब कभी भी रिफ्लैक्शन हो रहा होता है, आफ्टर रिफ्लैक्शन light rays meet at a point. So after reflection the rays going and meeting at a point, that collection is known as the convergent beam. Alright, so you can see here सारी की सारी rays आकर एक ही point पर meet हो जाती है, that can be taken as the convergent beam. फिर आता है third one, that is the divergent beam.
डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है, सारे की सारी जो लाइट रेज होती है वो एक पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में जा रही होती है. सो अगर ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक पॉइंट से सारे के सारे डायरेक्शन में लाइट रेज आर गोइंग, देन दिस कलेक्शन ऑफ रेज कैन बी टेकन एज द डाइवर्जेंट बीम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट से सारी की सारी लाइट रेज निकल रही है एंड दे आर गोइंग आउटसाइड. तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि टॉर्च में भी एक अच्छा है, बट जैसे सन रेज, सन अगर जैसे पूरा गोल है, राइट, ये तो हमें पता है. सन रेज सभी डायरेक्शंस में अपनी लाइट रेज को जो है भेजता है. ऑलराइट, सभी डायरेक्शंस में सन की जो रेज हैं वो ट्रैवल करती हैं. सो दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट. इफ वी टेक सन एज अ पॉइंट देन दे आर ट्रैवलिंग एज अ पॉइंट. तो सारी की सारी जो रेज हैं दे आर कैन बी से टेकन एज अ डाइवर्जेंट बीम, राइट. सो दे आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर डायरेक्शंस. ठीक है, एक पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मीन्स दे आर गोइंग अवे एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट. ठीक है, लेकिन अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन का बीम मतलब दे आर बीइंग नैरोड. ठीक है, हम वो कैसे हो रही है, एक ही पॉइंट पर मिल रही है, दे आर बीइंग नैरोड एट अ पॉइंट, तो उसे हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट बीम बोल सकते हैं, राइट. एंड द डाइवर्जेंट इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट, दे आर स्प्रेडिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस, राइट. फिर आप अगर पैरेलल बीम को बोलेंगे, सो दे आर द रेज विच आर नेवर गोइंग टू मीट एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. Alright, make sure you note them down because these are the things we are going to use when we are talking about the different phenomena along with the different things. ऑलराइट, तो हम लोगों ने आज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखा है वो क्या देखा है कि भाई लाइट किस तरीके से बिहेव करती है. ऑलराइट, कभी भी जब कभी वो कोई मीडियम के दो मीडियम के इंटरफेस पर मिलती है तब वो किस तरीके का बिहेव करती है, लाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑलराइट, वो डिफरेंट मीडियाज में किस तरीके से बिहेव करती है, उसकी स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या फिनोमेनाज वो शो करती है वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल, राइट. ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी along with these some terms which you need to know. All right, in the next lecture we are going to study the reflection of the light, right. तो आप लोग देखेंगे कि जो reflection है वो किस तरीके से होता है, the phenomena. First we will be seeing about the plane mirror, then we will be looking forward to the spherical mirrors, the phenomena, how it is behaving, कितने तरह का reflections होता है. ऑलराइट, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले, बिकॉज वी ऑल नो कि हम अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख रहे हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी अ टेबल देन यू आर सीइंग दैट टेबल आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे जो उस टेबल पे फॉल हो रही हैं वो आपकी आईज में जा रही हैं. एंड टेबल इज़ नॉट अ शाइनी सरफेस, राइट. हमने ये देखा है, तो टेबल जब शाइनी सरफेस नहीं है तो टेबल रिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है, that is the other type of reflection. So there are two types of reflection which we are going to deal in the next chapter. Along with these हम लोग आगे और refractions and other phenomena जो light के होते हैं we will be talking about that in the next classes. All right, so that was it in this lecture. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. So thank you so much, and do not forget to do the homework and submitting it to us. Also join our Telegram channel. So thank you so much.